Good afternoon, students. So, the chapter that we are starting today is for 11th class. The title of the chapter is Discovering Tut. The saga continues. Most of the students who are studying in 11th class and those who have even passed 11th class, they have faced difficulty in understanding this chapter. The reason is there is hardly any story in the chapter. The chapter is mostly based on facts. So, I have tried to just fix these facts into a story so that you can understand them and you can retain them for long, and you are able to write the answers when they are asked in the exam. So the thing is, when we talk about the title Discovering, it is made up of the word discovery, which means khoj karna, and they are discovering Tut, who happens to be a mummy of a very famous king of Egypt. It was somewhere around 1300 to 1400 years before when he was alive, and when he was alive, he was the ruler of Egypt, and he died as a teenager. He was very young. He was not even 18 when he died, and there is a little history of his family that we need to understand about. The very first ruler of his dynasty is Amenhotep III. It is not very clear whether he was the father or grandfather of Tut. Then another ruler succeeded him whose name was Amenhotep IV. But he was somebody who brought a big change in the dynasty, a very strange period. He stopped the worship of god Amen, and instead he compelled or forced people to worship the god Aten. The god Aten is nothing a sun disk. So he changed his name from Amenhotep to Aten. You can see that I will underline this Aten word is used in the name. Then another ruler came, and before this ruler came, Amenhotep did destruction to the city. He destroyed the temples, he destroyed the statues of god Amen because he wanted to promote god Aten. After this ruler came, and this ruler ruled for very uncertain period of time, and he did not do anything specific or anything good which can be remembered. After him, the ruler who came to rule was Tutankhaten, who was none other than our own Tut. And you can see that Aten, this god's name, is also at the end of his name. But soon he realized the glory of his past dynasty and glory of his forefathers. Then he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamen, and he restored the old ways, restored the worship of Amen god. He asked people to start worshipping god Amen, and people were very happy. But unfortunately, before he could become 18, he died. And nobody knew how he died, when he died, what were the circumstances in which he died. So that is why when the archaeologists, these are the two archaeologists, Howard Carter and Zahi Hawass. So when they tried to search about the lives of mummy, the first mummy that was discovered by Howard Carter in 1922 was Tut's mummy. And Tut's mummy was covered with a lot of things which were of highest quality. They were very expensive. They had gold ornaments, there were amulets, there were bracelets, sheaths which are used for covering fingers. So everything was of pure gold. So the very faded evidence, the very unsure evidence that he died in March or April, because we never got to know in which year he died, but we got to know that he died in March or April. So these were the things which were found. Garlands are mala, garlands of willow, olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. These things were found in the garland around his neck. So when those things were scanned and
they were investigated, it was found that those things are found especially in the weather conditions of March or April. So then we got to know that he must have died somewhere around March or April. That's why his body was buried with that. His body was also buried with some important things like linen clothes, linen undergarments, razor, other important things, even wine, food cases, because people in Egypt thought then that the kings who are dying, they must need all these things in their afterlife. Then, after Howard Carter found the body or the mummy of Tut, he wanted to X-ray the mummy to know about the life details of Tut. So, when he tried to take out the mummy from the coffin, it was almost impossible for him to take out. Any man with immense power, anyone who thinks that he is Khali or he is Undertaker, who can do anything, even they could not remove or move the body. So what he did, that he took out the coffin and put it in the sun, because in Egypt the normal temperature is above 45 degrees. So he thought that the resins that had glued the body with the coffin, he thought that those resins would melt down and they would be able to take out the body, but it could not happen. So basically Howard Carter had to chisel the body. Chisel is something, वो जो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र होता है ना, वैसी एक मशीन आती है. So he chiseled the parts away from the coffin. In the process, he ended up breaking many important body parts of Tut. Once the X-ray was done, the mummy was laid back again, and you know what? X-ray and CT scanner both are same thing, but they are different also. X-ray is done from 1, 2 or maybe 3 angles, but CT scanner is done, CT scan is done, it's an X-ray, it's an extended form of X-ray, that it's done with various angles. So the injuries that are not found with X-ray, they may be found with CT scan. So Zahi Hawass did this in 2002 to 2000, between 2000 to 2005. So while he was investigating the body, he found that the body was harmed badly by Howard Carter. So at last, when he was, putting the body into CT scanner, the winds in the desert started in full flow or in huge part. So the sand which came up entered the fans of CT scanner, and the CT scanner's fans stopped working. They had some substitute CT scanner fans, so they were fixed and the CT scan was complete. On that night, Zahi Hawass confessed that he was not able to sleep properly, because he thought, what would happen if I end up destroying the mummy a little more. So once it was done properly, he took a sign of relief and then he slept properly. Apart from that, the one thing which is to be noted, that somewhere between 1940s to 1950s, the body was discovered again, just to be found that the important limbs of the body, like front ribs or back ribs of Tut, were found missing. And Howard Carter, for destroying the mummy a little like this, confessed that he had no other option, because he gave a very strong reason for that, that if he had not taken out the body, the thieves must have killed the what we call guards and taken out the gold ornaments. Now it's time to explain the chapter Hindi for the students who are not able to understand English. ये चैप्टर हम सबको पता चल चुका है अभी तक, ये टट के बारे में चैप्टर है, और टट की फैमिली के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई है. एमेनोटेप 3 जो थे, उनके दादा या परदादा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया. सबसे फर्स्ट रूलर एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पर चैप्टर के अंदर. एमेनोटेप 4
इनकी जगह आए थे और बाद में इन्होंने अपना नाम एकेन एटेन रखा था। उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने एक अलग सा ही पीरियड ला दिया था। पहले इजिप्ट में इन भगवान की पूजा होती थी, इमन भगवान की, लेकिन उन्होंने एटेन भगवान की पूजा पर जोर दिया और लोगों को फोर्स किया कि वो एटेन भगवान की ही पूजा करें। उसके लिए उन्होंने मंदिर तुड़वा दिए एमन भगवान के और उनकी मूर्तियां तुड़वा दी और लोगों को बड़ा ही उन्होंने टॉर्चर किया होगा इनकी जगह पे इन भगवान की पूजा करने के लिए। उसके बाद में ये फिर ये मर गए, इनके बाद में स्वेन करे आए और ये जब आए तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं, तो इनके बारे में कोई खास डिटेल है नहीं। इनके बाद में हमारे जिसके बारे में हमारा पूरा चैप्टर है टटजी टूटेन खाटेन नाम से ये आए और ये आए तो इन्होंने अपने दादा परदादाओं का जो समय था वो वापस ला दिया कुछ समय के लिए, जब इन्होंने बोला वापस से कि हम एटेन भगवान की जगह पे एमन भगवान की पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले इनका नाम एटेन से ही पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके एमन रख लिया था। तो ये बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे थे, लेकिन ये बहुत जल्दी मर गए, टीनेज में मर गए, 18 साल होने से पहले ही मर गए। कब मरे, कैसे मरे, क्यों मरे, वही पता लगाने के लिए ये चैप्टर बनाया गया डिस्कवरिंग टट, जिसमें अलग अलग स्टडीज़ की गई, अलग अलग रिसर्च किए गए। ये आर्कियोलॉजिस्ट जिनको पुरातत्व विभाग के जो साइंटिस्ट होते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं या पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, ये दो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हावर्ड कार्टर एंड ज़िया वास। हावर्ड कार्टर 1922 में जब मम्मीज़ को सर्च कर रहे होते हैं तो वो टट की मम्मी के पास आते हैं और वो उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वो उसको सर्च करते हैं। तो उनके मम्मी के पास में 3 कॉफिन मिलते हैं, एक कॉफिन में सोने चांदी सब रखे हुए हैं, दूसरे में उनके खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, तीसरे में खुद मम्मी को लिटाया गया। और जो सोने चांदी की चीज़ें हैं उसके अंदर उनके माला और उनके जो उंगलियों में चीज़ें लगाई जाती है सोने की वो है। उसके अलावा जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी आगे वो सब चीज़ें डाली गई। दूसरे में उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके लिए शराब भी रखी गई और भी बहुत सारी चीज़ें वो डाली गई थी। तो वो लाइफ को चाहते थे कि वो आप जिंदा हैं तो एंजॉय कर ही गए, लेकिन जब मर रहे हैं तो मरने के बाद भी वो लाइफ में जो उनको चीज़ों की ज़रूरत है वो मिले। साथ में जो उनको रेजर की ज़रूरत पड़ेगी दाढ़ी बनाने के लिए, जो उनको अंडरवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ डाली गई। तो हमको ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया कि वो कौन से साल में एग्जैक्टली मरे थे, लेकिन इतना पता चल पाया है कि वो मार्च और अप्रैल में मरे थे। उसका थोड़ा सा अंदाज़ा इसलिए लग पाया है क्योंकि जो माला उनके पास मिली थी, गार्लेंड्स का मतलब माला होता है, जो माला मिली थी विलो की थी, ऑलिव की थी, वाइल्ड सीलरी थी, लोटस के पेटल्स थे, यानी कि जो लोटस फ्लावर होता है उसके पत्तियां मिली थी और कॉर्नफ्लावर्स मिले थे, सब वो माला में पिरोए गए थे। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर मार्च और अप्रैल में मिलती हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि शायद जब वो मरे होंगे तो मार्च और अप्रैल का समय रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम करता है, ज़्यादातर आता है 11th क्लास के अंदर। और यहाँ पे इजिप्ट में किंग को यानी राजा को फैरो बोला गया था, यानी जितने भी राजा मेंशन किए गए इनको पहले फैरो ही समझा जाता था, इनको बोला ही फैरो जाता था। अब एक चीज़ है जो हमको ये समझनी है इसके अंदर कि हावर्ड कार्टर ने जब बॉडी डिस्कवर की थी तो बॉडी रेजिन्स की वजह से यानी गोंद की वजह से बिल्कुल चिपक गई थी कॉफिन से, यानी कि जो कब्र है। अब उससे निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसका रीज़न सिंपल सा इतना था कि बॉडी चिपक गई थी, तो इंसानी ताकत तो उसको कोई निकाल ही नहीं सकती थी, कोई कितना ही बड़ा अंडरटेकर हो वो उसको निकाल ही ना पाए। तो उसने सोचा कि रेजिन्स जैसे गर्मी में बाद में चिपके हैं, तो अगर हम इनको धूप में रखेंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे तो ये पिघलेंगे, पिघलने के बाद हम इनको वापस निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम इसकी एक्सरे भी कर लेंगे। लेकिन उसका एक प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, 2-3 दिन वो बाहर भी रखता है लेकिन कुछ भी नहीं बॉडी को होता है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, चाइजल, यानी कि जो गोल गोल वाली वो काटने वाली मशीन होती है, उससे वो उसके बॉडी को उसे ताबूत से यानी कॉफिन से हटाने की कोशिश करता है। अब जब वो हट जाती है तो उसके बाद में वो उसको एक्सरे करता है। एक्सरे इसलिए किया जाता है क्योंकि 1922 के आसपास में एक्सरे सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। और एक्सरे ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम इंजरीज आ जाती है, लेकिन सारी इंजरीज नहीं आ पाती। कोई भी चोट है, कोई भी ब्रोकन पीस है या फ्रैक्चर है, वो एक्सरे में हमेशा नहीं आ पाता। रीज़न क्या है कि एक्सरे कुछ ही एंगल से ले जाता है। अब इन्होंने जब ये किया तो उसके बाद जब एक्सरे कर लिया तो बॉडी को लेटा दिया, बॉडी डैमेज थी थोड़ी सी। बाद में कुछ 40-50 साल बाद या 30-40 साल बाद बॉडी को फिर से निकाला गया था जस्ट टू एक्सरे। ये पता लगाया गया कि ये एक मिस्ट्री, एक इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, एक शॉकिंग ट्रुथ भी था
कि उनके फ्रंट और बैक रिब्स जो थे वो मिसिंग थे, यानी कि किसी ने बॉडी के साथ छेड़छाड़ की थी। अब हावर्ड कार्टर ये बोलते हैं कि मैंने ये जो किया था जिसकी वजह से मम्मी को नुकसान पहुंचा, मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर मैं मम्मी को ऐसे ही रहने देता तो चोरों को कभी ना कभी पता चल जाता कि यहाँ मम्मीज मिली है जिसके अंदर सोना बहुत सारा है, और वो आते गार्ड्स को धोखा देते या उनको मार डालते और वो सोने की चीज़ें उठा के लेके चले जाते। तो मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। बाद में लगभग 70-80 सालों बाद में जो ज़ही हवास जी हैं, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सीटी स्कैन करने का मन बनाया, इन्होंने बॉडी को निकाला। अब ये सीटी स्कैन करने के लिए जब बॉडी को ले ही जा रहे थे तो हवाएं तेज़ चलने लगी, और जैसी हवा तेज़ चलने लगती थी तो लोग ये समझते थे कि फैरो को यानी किंग को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो नेचर भी बदला लेने के लिए आ जाता है। अब जब हवाएं चलने लगी रेगिस्तान में तो धूल उड़कर, मिट्टी उड़कर पंखों में चली गई सीटी स्कैनर में, और पंखे बंद कर दिए। तो सब्स्टिट्यूट फैंस लाए गए, सब्स्टिट्यूट फैंस ने उसको चेंज किया, और सब्स्टिट्यूट फैंस को चेंज करने के बाद में सीटी स्कैनर जो था वो अच्छे से काम करने लगा, और एक्सरे फाइनली जो सीटी स्कैन से जो एक्सरे, सीटी स्कैनर से जो एक्सरे होता है वो बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म है, अलग अलग एंगल से लिया जाता है, वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुली किया गया। ज़ही हवास ने चैन की सांस ली, वो बड़ा नर्वस था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि नहीं। फिर फाइनली जब वो सही हुआ तो चैन की नींद वो बहुत आराम से सो गए। अब जो बात नोट करने की है वो नोट करने की क्या है, स्टार्टिंग में भी चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि लोग विजिट करने आते थे जहाँ जहाँ पे भी ये कब्र थी, और जब वो विजिट वो करने आ रहे थे लोग, तो वो लोग थोड़ा डर रहे थे कि हम कहीं इसको जो ये फैरो यानी किंग है ताकि उसको डिस्टर्ब ना कर रहे हो कहीं। लेकिन फाइनली उनको ये रियलाइज़ भी होता है कि हाँ शायद हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कोई फुसफुसाहट कर से बात कर रहा है, मर्मर करके बात कर रहा है, कोई बिल्कुल चुप खड़ा होकर देख रहा है, डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बद्दुआ हमें लग जाए, या तो हम मर जाएंगे या हमारी ज़िंदगी में बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। यही है इस चैप्टर के अंदर फैक्ट्स। होपफुली आपको मोटे मोटे तौर पर समराइज फॉर्म में ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।